میں مسلمان ہوں بھائی. آپ صرف مسلمان ہیں، ٹھیک ہو گیا، اسکین ہو گیا اب آپ کا. صحیح ہے قاسم بھائی. بھائی حاضر حاضر ہے، ویکھو آ گیا، میں آ گیا جی دیکھو نا، جناب. یہ پڑھے ذرا میاں صاحب، جہاں سے پیلا کیا ہوا میں نے، ذرا آپ خود پڑھیں تاکہ پتہ لگے. بھائی اوپر سے پڑھیں، اونچی آواز میں پڑھا کریں، آپ باتوں کو جو ہے نا چھپا لیتے ہیں پھر نا. تھوڑا اوپر سے والا بھی پڑھیں. یہ لیں جی محفوظ بھائی کو اوپر. یہ جو آپ نے ہائی لائٹ کیا یہ پڑھوں؟ جی میرا ایک منٹ سے اب آپ میوٹ لگا ذرا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد محترم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ جی وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، طبیعت بھی ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اچھا میاں صاحب کیا مرزا جونیئر جیلمی صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ نہیں بھائی. اچھا تو کس کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ محترم کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب سنی بریلوی ہیں. اظہر بھائی ایک منٹ، اظہر بھائی استاد جی پوچھ لیتے ہیں، آپ میوٹ لگا کر. جی میاں صاحب کس کے اسٹوڈنٹ ہیں پھر؟ جی سر، میں اسٹوڈنٹ تو میں کسی کو بھی نہیں کہتا، میں البتہ ہر وہ بندہ جس نے مجھے اچھی بات بتائی ہے میں اس کا شاگرد ہی ہوں. ٹھیک ہے، اچھی باتیں. پھر کس سے سیکھی ہیں آپ نے؟ جناب ان میں یہ بھی آتے ہیں، پلمبر صاحب بھی آتے ہیں، طارق مسعود صاحب بھی آتے ہیں، اس کے بعد ثاقب رضا مصطفی صاحب بھی آتے ہیں. تو پلمبر صاحب سے کون سی اچھی بات سیکھی ہے؟ کوئی دو چار بتائیں ہمیں بھی. پھر اس سے میں نے ایک جو رفیع الدین سے نماز پڑھنا جو ان ساتھ ہے نا، جو کہ مجھے اچھا لگا، ہاں میں نے اس طریقے سے نماز پڑھنا شروع کر دی. بالکل ٹھیک ہے. ایک تو رفع دین آپ نے سیکھا ہے، اور دوسرا یہ کہ جب وہ کسی کو گالی نہیں دیتا، جب بھی وہ اپنے لیکچرز میں وہ بات کرتا ہے نا تو وہ ہر ایک کو ایک ادب کے ساتھ، عزت کے ساتھ بلاتا ہے. اچھا دو چیزیں میں نے اس سے یہ سیکھی ہیں جو کہ مجھے اچھی لگی. صرف دو ہی؟ جی ابھی تک دو ہی. زبردست ہو گیا. اور تیسری بات ہاں وہ میں نے وہ سیکھی تھی کہ نماز جنازہ کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنا. نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا صحیح ہو. تو آج کل پھر عمل کر رہے ہیں اس کے اوپر؟ جی میں ان چیزوں پہ عمل کرتا ہوں. زبردست ہو گیا. پہلے نہیں کرتے تھے؟ پہلے میں رفع الدین کے ساتھ نماز نہیں تھا پڑھتا. اور گالیاں بھی دیتے ہوں گے؟ جی. اور نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھتے ہوں گے؟ جی پہلے نہیں تھا پڑھتا. ٹھیک. اچھا تو باری باری بات کر لیتے ہیں، آپ ہمیں بھی کوئی سمجھائے رہے ہیں. رفع دین کے ساتھ نماز، پہلے تو یہ بتا دیں یہ ہوتی کیا ہے؟ آپ زیادہ بڑے ہیں مجھ سے، میں تو چھوٹا ہوں، آپ کو مجھ سے زیادہ علم ہے. وہ بھائی سے میری پہلے بات ہو مجھے گئی ہے، پتا نہیں نا، میں اس اس سے لیے میں نے پوچھ رہا ہوں. کنکلوژن اس سے میں اگر نے پتا، نکالا. وہ قاسم بھائی سے میری بات ہوئی ہے، ان پہ میں نے کنکلوژن یہی نکالا تھا کہ جو لوگ کیا نام لیتے ہیں رفع دین سے نماز پڑھنے کو ٹھیک سمجھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، جو نہیں سمجھتے وہ بھی ٹھیک ہے. کیونکہ انہوں نے مجھے دکھائی ہے نا ترک رفع دین پہ جون سی انہوں نے مجھے دکھائی ہے نا کیا نام لیتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کی، اور پھر ان کی ایکسپلینیشن پہ جون سی امام بخاری نے اور امام احمد بن حنبل صاحب نے جو تھوڑا بریکا سے پیر رکھو تسی تے لے. وہ ایک منٹ رک جائے میاں جی، آپ تو پتہ نہیں جی کدھر موشر چلے گئے ہیں. جی موشر میں نے یہ کہا ہے کہ آپ نے جو رفع دین اس سے سیکھا ہے وہ کیا سیکھا، وہ کیا ہوتا کیا ہے رفع دین؟ رفع دین کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ہم رکوع سے جب پہلی رکعت میں کھڑے ہونے ہیں تب بھی رفع دین کرنا ہے، یعنی اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھانا ہے، اور اس کے بعد پھر جب رکوع میں جانا ہے اس سے پہلے رکوع سے اٹھتے وقت، اور اس کے بعد
कहीं एक जगह पे क्या नाम लेते हैं सजदे के दोनों सजदों के दरमियान भी है। अच्छा एक मिनट जरा रुक जाइएगा, आराम से आराम से। जी एक तो नमाज की इब्तदा में, जी अच्छा मैं मैं लिख लूं जरा यार, थोड़ा सा सांस ले लें भाई। जी ठीक है जी मुशक्किल। नंबर एक इब्तदा में, नंबर दो नंबर 2 मैं जो करता हूँ मैं रुकू से जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त। अच्छा रुकू में जाने और आने, ठीक है, जी ये हो गए, ये दो मकाम हो गए। तीसरा आप वो कोई दो सजदों के दरमियान भी कह रहे थे। जी जी वो मेरा दोस्त करता है लेकिन वो मैं नहीं करता है। अच्छा यार दोस्त कहाँ से आ गया, मैं कह रहा हूँ मिर्जा जूनियर जेल में प्लम्बर से आपने क्या सीखा है? वो भी यही कहता है। मैंने इतना ही सीखा कि रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त। तो बीच में फिर ये दो सजदों के दरमियान कहाँ से आ गया, वो तो मैंने पूछा ही नहीं। क्योंकि वो ये भी कहता है ना कि ये भी सही है। अच्छा वो कहता है ये सही है, अच्छा हाँ ये तो हाँ। फिर वो जो जब सही कहता है तो वो क्यों नहीं करते आप? वो क्योंकि वो कहता है कि इस पे है सुन्नत है लेकिन आसद सल्लम ने ज़्यादा मुतवातर तरीके से इसको नहीं किया हुआ है, इस वजह से हम भी कभी कभार कर लेते हैं एक सुन्नत को पूरा करने के लिए और कभी कभार नहीं भी करते। हाँ अच्छा, तो आपने भी कभी कभी किया है? नहीं मैंने नहीं कभी नहीं किया मैंने। तो फिर तो आपने पूरा तरीका तो नहीं ना सीखा उससे। जी माजरत गलती होगी आगे से कर लूँगा। हाँ आज करेंगे? नहीं पता नहीं। नहीं आज जोहर की अभी आनी है, आपकी कौन सी है क्या नमाज? अभी तो हमारे इधर पाकिस्तान में तो जोहर होनी है। जोहर ही होनी है जोहर ही हाँ तो होनी जोहर के फजर के जोहर के फर्जों के अंदर आप कर लीजिएगा दो सजदों के दरमियान रफाई है। देन ठीक करेंगे। आप मुझे ऐसे कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? नहीं कंफ्यूज नहीं बेटा, मैं भाईजान कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि जब आपने सीखा है ये तरीका, जिससे सीखा है तो उसने आपको बताया है, उसने ये भी बताया है कि भाई कभी कभी करना जो है ना सुन्नत है, तो आपने अभी तक उस पे अमल नहीं किया। मैं इस वजह से कह रहा था वो कभी कभी वाली सुन्नत आज पूरी कर लें। उसकी वजह ये थी कि जब मैंने इसका ये लेक्चर सुना था रफ़े दैन वाला, उसके बाद मैंने इसके जब से नमाज का तरीका देखा था, उसके अंदर इसने सिर्फ ये रुकू से जाते वक्त रुकू से उठते वक्त वाला किया था रफ़े दैन, और उसको मैंने उस वहाँ से देख के उसके बाद मैंने कभी वैसे वो सजदे वाला किया नहीं है वैसे। यार वही तो मैं कह रहा हूँ मियाँ साहब के कभी नहीं ना किया, तो जबकि वो कह रहा है कि भाई कभी कभी कर लिया करो, तो वो कभी तो करनी है आपने, तो वो आज कर लें। तो फिर मुझे कोई तरीका मतलब वो भी तरीका ऐसे ही है कि मतलब फिर कि जब पहले सजदे में जाना है जब पहले सजदे से उठना है तब करना है और जब दूसरे सजदे में जाना है तब करना है, ऐसे है। मुझे पता नहीं ना है इसका यार। मुझे भी तो नहीं ना पता, आपके मुंह से सुन रहा हूँ। आप तो मुझे फिर ऐसे कह रहे हैं कि यार जैसे आपको पता है फिर। नहीं मुझे नहीं पता मियाँ जी, आप ना मुझे आप शायद समझ रहे हैं कि मैं मिर्जा जूनियर जेलमी का कोई मुरीद हूँ, उम्मती हूँ, फॉलोअर हूँ, कोई स्टूडेंट हूँ। मैं उसको कुछ भी नहीं मैं समझता। मैं तो उसको मिर्जा सीनियर गुलाम का दियानी का समझ लेके शिगिर्द समझता हूँ। अल्लाह माफ़ करे जनाब, मैं उनको ऐसा नहीं समझता क्योंकि वो तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, आप मुझे कह रहे हैं, मैं तो उसको कुछ भी नहीं समझता, समझते तो आप हैं, मैं तो नहीं कुछ भी समझता, समझ तो आप नहीं जी। अच्छा चलें ठीक है, शुरू करते हैं। अब मैंने ना लिख ली हैं ये चीजें। अच्छा आप कह रहे हैं मैंने ना मिर्जा जूनियर जेलमी से सीखा है नमाज की इब्तदा में रफ़ाई दैन करना, रुकू से जाने से पहले और उठने के बाद रफ़ाई दैन करना जी। तो वो सजदों वाली बात बाद में करते हैं। पहले तो इन 3 रफ़ाई दैनों का कोई सबूत उसने दिया होगा, क्या सबूत है जी? वो क्या नाम लेते हैं, वो बुखारी मुस्लिम से हदीस देते हैं। हाँ वो मुझे लिखवाइएगा, मैं वो लिखना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी अमल करना चाह रहा हूँ बड़े अरसे का। तो चलें आज आप मिल गए हैं, आपने तो कन्फर्म किया होगा, आपने स्टडी किया, आपने तहकीक की, रिसर्च की, तो उसके बाद आपने रफ़ाई दैन करने शुरू किए हैं ना। तो आप वो जो तहकीक और रिसर्च की हुई है वो मुझे भी बताएंगे, तो चलो मैं भी करना शुरू कर दूंगा, तो आपको सवाब होगा। जी ऐसा है कि नहीं?
एक मिनट में ना ये निकाल बुखारी 600 800 गया ना। अच्छा ये जौन सा इमाम बुखारी ने जौन सा है रफ़ीउद्दीन पे जुज़ रफ़ीउद्दीन इस पे पूरा एक बाब बांधा है उसके वो भी उन्होंने उनकी भी तो माशाल्लाह से होने नमाज पढ़ने के बाद अज़ान करते हैं इनको उठाते तो उनमें से कोई यार ये कौन सी थी 631 जी सही बुखारी की 631 नंबर हदीस। अच्छा जी, मैं एक मिनट मैं लिख लूँ ज़रा। बुखारी 631 मैं लिख लूँ ज़रा, एक मिनट मैं निकालता हूँ थोड़ा सा। चलो ये तो मेरा इतना देखे मसला हल हो गया। तो इतने अरसे की हम नमाज गलत पढ़ रहे थे तो वो तो कबूल ही नहीं हुई फिर कोई, तो चलो आज हमें पता चल जाएगा। अच्छा जी, तो ये 631 आ गई, ये पढ़िए ज़रा क्या लिखा है इसमें। हेलो जी जी आप 631 कह रहे थे, पढ़िए क्या लिखा है इसमें। जी इनमें क्या नाम लेते हैं मालिक हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए। हम उम्र और नौजवान ही थे। आपकी खिदमत मुबारक में हमारा 20 दिन और रात क़याम रहा। आप बड़े ही रहम दिल और मुनसलार थे। आपने देखा कि हमें अपने वतन वापस जाने का शौक़ है, तो आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम लोग अपने घर किसे छोड़ कर आए हो। तो हमने बताया। फिर आपने फरमाया अच्छा अब तुम अपने घर जाओ और इन घर वालों के साथ रहो और उन्हें भी दीन सिखाओ और दीन की बातों पर अमल करने का हुक्म करो। मालिक ने बहुत सी चीज़ों का जिक्र किया जिसके मतलब अबू अयूब ने कहा कि अबू कलाबा ने यूँ कहा और वो बातें मुझको याद हैं, या यूँ कहा कि मुझको याद नहीं। और हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस तरह नमाज़ पढ़ना जैसे तुमने मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देखा, और जब नमाज का वक़्त आ जाए तो कोई एक अज़ान दे और तुम में से सबसे बड़ा वो नमाज़ पढ़ाए। इसमें तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद मैं देता हूँ ना, उसके बाद इनकी उन्होंने बात हुई थी। नहीं इसमें तो रफ़ा दैन का कोई जिक्र नहीं है। मैं बताता हूँ आपको एक मिनट। नहीं ये आपने गलत बयानी क्यों की, इसमें तो कोई नहीं है। हेलो ये वो कहा ना कि क्या नाम लेते हैं कि नमाज में आखिर सल्लल्लाहु ने फरमाया कि नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखो, तो उसका क्या नाम लेते हैं तो फिर वो रफ़ा दैन का तो कहीं जिक्र नहीं है। मैं बताता हूँ ना, वो भी हदीस दे देता हूँ ना आपको। नहीं ये देखे तो गलत बयानी आप हमारे साथ ना एक मिनट रुक जाए आप एक मिनट रुक जाए। आप क्या मजाक मस्करी कर रहे हैं मेरे साथ? मैं मजाक मस्ती नहीं कर रहा। नहीं आप मुझे लगता है मेरे साथ खेल रहे हैं। उस तरह पढ़ो कि जिस तरह मुझे मेरे साथ खेलना चाह रहे हैं। मैं आप जनाब देख ले फिर हदीस के नाम के ऊपर आप कितना बड़ा दजल बयानी की कि हदीस में आया है, और बुखारी की हदीस 631 आपने खुद पढ़ के भी सुनाई या तर्जुमा और मफहूम। अगरचे हदीस नहीं आपने पढ़ी, हदीस का तर्जुमा और मफहूम पढ़ा है। पहली ज्यादती तो आपने ये की कि बुहतान लगाया कि हदीस में है। जब हदीस में है, एक मिनट सुन लें। एक आपने ये गलत बयानी की कि आपने जब हदीस कहा था तो फिर आपको अरबी हदीस पढ़नी चाहिए थी, क्योंकि एक मिनट क्योंकि हदीस अरबी में होती है, उर्दू में तो नहीं होती। बात करने दें, पहले बात कंप्लीट कर लेने दें, मैं आपको बोलने का मौका देता हूँ। समझ आई कि नहीं? बीच में टोकना ये अच्छी बात नहीं। दुनिया का हर कादियानी और मर्ज़ी यही काम करता है, बात टोकते हैं, रोकते हैं, बात उलझा के रख देती हैं। समझ आई कि नहीं? सुन लें पहले जब आपने कहा जी हदीस में है, तो हदीस तो उर्दू में तो नहीं है, हदीस इंग्लिश में तो नहीं होती, हदीस तो अरबी के अंदर होती है। अरबी के अल्फाज को हदीस कहती हैं। तो जब हदीस अरबी में है तो फिर अरबी में पढ़नी थी आपने, उर्दू में क्यों पढ़ी? तर्जुमा क्यों सुनाया? और अगर तर्जुमा ही आपने पढ़ना था तो आप ये कहते कि 631 हदीस का तर्जुमा और मफहूम ये है कि रफ़ाइदन करना चाहिए। अच्छा ये है पहली बात। दूसरी बात, जब आपने ये हदीस 631 पेश किया उसमें तो कुछ भी नहीं है, तो ये तो किताब ही किताबुल अजान है, ये किताबुल नमाज नहीं है, किताबुल सलात नहीं है, ये नमाज की किताब नहीं है।
तो आप ने क्यों ये बुहतान बांधा? हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन काज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जिसने मेरी तरह झूठ की निस्बत की उसको चाहिए अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। आपका प्लम्बर वो भी जन्नमी है, वो नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर झूठ मानता है, और मतलब उसके शागिर्द और फॉलोअर भी ऐसे ही हैं। मतलब तुम सब लोगों ने नबी पर ही झूठ बांधना है, कोई और काम नहीं है तुम लोगों को, बताएं। अच्छा मुबशिर भाई, सबसे वो आपने जो बात की है कि वो आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है कि किसी को जहन्नम या जन्नत की डिग्री देने का? हाँ, ये सर्टिफिकेट है मेरे पास। मुस्लिम शरीफ निकाले जरा, जिस ऐप के जरिए आपने निकाला है ना अभी, निकाले मुस्लिम शरीफ। और जो मैंने आपको मुस्लिम निकाले मुस्लिम शरीफ, मैं सर्टिफिकेट दिखाता हूँ, मैं आपको देता हूँ, निकाले सर्टिफिकेट दिखाता हूँ तो ना मुबशिर भाई मुझसे भाई। लड़े तो ना। मुकदमा मैं हदीस हुजूर की बात की है। हजूर अलैहिस्सलाम से आप ये इतराज कर रहे हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास क्या सर्टिफिकेट है कि जन्नत में आप भेज रहे हैं? मैं तो हुजूर की बात कर रहा हूँ। सही मुस्लिम क्या आप नबी के ऊपर इतराज कर रहे हैं कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है कि आप जन्नत में भेज रहे हैं? नहीं, आपने इतराज तो हदीस के ऊपर किया है ना। हाँ मुझे हजूर अलैहिस्सलाम की हदीस है और मुकदमे के अंदर लिखी हुई है। जी मुझे हदीस का मतलब आप इतने बेबाक हो चुके हैं आप लोग, मिर्जा जूनियर जेलमी के फॉलोवर मरजई, कि मतलब हदीस भी तुम लोगों को सुनाई जाए तो उस हदीस के ऊपर भी इतराज कर देते हो। हदीस अल्लाह के नबी की हदीस है। हजूर फरमाते हैं मन काज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जिसने मेरी तरह झूठ की निस्बत की उसको चाहिए कि अपना ठिकाना जन्नत में बना ले। हदीस नंबर 4 है, मुकदमा मुस्लिम शरीफ के मुकदमे की हदीस नंबर 4 है जी। हमने ये मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं? आप मुझे बता दें। रुकिए, इतराज आपने नबी पर कर दिया तो बस। ये देखिए मुस्लिम, ये मिर्जा जूनियर जेलमी के बाबे जुबैर अली ज़ई की वेबसाइट है, मुस्लिम शरीफ है, और ये हदीस नंबर ये देखिए 4, ठीक है। ये मैंने अभी आपको सुनाया, हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, ये हदीस है। हजूर फरमा रहे हैं कि जिसने मेरी तरह झूठ की निस्बत की उसको चाहिए अपना ठिकाना जन्नत में बनाए। तो आप कह रहे हैं आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है कि आप किसी को जन्नत रसीद करें? मतलब ये आपने नबी के ऊपर इतराज कर दिया। अल्लाह माफ करे जनाबे वाला। ओ भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मैं यही तो कह रहा हूँ। आप हजूर फरमा रहे हैं जन्नमी होने का। मेरी तो सुन ले आप अपनी। भाई ये इतराज आपने क्यों कर दिया? आपको मैंने आपकी बात को माफ करे तो अल्लाह माफ करे हम सबको, अल्लाह माफ करे हम सबको। मतलब ये कि मिर्जा जूनियर जेलमी ने तुम लोगों को मुल्हिद बना दिया है। भाईजान मेरी बात तो सुन ले। मुल्हिदों वाली बात है, लड़ क्यों नहीं है मेरे साथ? मैं नहीं लड़ रहा। आपने इतराज क्यों किया कि आपने सर्टिफिकेट जन्नत का कहां से निकाला है? ये हजूर के ऊपर इतराज है। हजूर फरमा रहे हैं, हजूर की हदीस है। अच्छा मैंने कौन सा किया? पहले मैंने क्या झूठ बोला मुझे ये तो बताओ। ये आपने कहा है कि तुम्हारे पास कौन सा सर्टिफिकेट है, तुम जन्नत रसीद कर रहे हो। मैंने तो हदीस सुनाई है, ये देखिए। मक़अदहु मिनन नार, मैं ये कह रहा था हजूर फरमा रहे हैं मक़अदहु मिनन नार। जी ये देखिए, ये पढ़िए जरा। ये पढ़ लिए मैंने जनाब, पढ़ लिया। आपने कहा था ना कि इंजीनियर आप सल्लम पे नौज़ुबिल्लाह झूठ नहीं, आपने ये क्यों कहा कि तुमने सर्टिफिकेट क्यों जन्नत का रसीद किया मुझे? क्योंकि भाईजान मैं एक आम इंसान हूँ। क्योंकि मतलब मैंने तो हदीस सुनाई थी, आपने मेरे ऊपर इतराज ये क्यों किया? बताएं, मैंने तो हदीस सुनाई है। क्योंकि आप ये कह रहे हैं ना कि प्लम्बर वो आप सल्लम पे नौज़ुबिल्लाह झूठ मानता है, तो नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये मैंने आपको हदीस सुनाई थी, तो आपने ये फिर क्यों कहा था कि आपने ये बोला ना कि तुम्हारे पास क्या डिग्री है कि तुम किसी को जहन्नम रसीद करो? आपने कहा ना कि इंजीनियर भी जहन्नमी है और उसके स्टूडेंट्स भी जहन्नमी है। चलो ठीक हो गया। मैंने तो हदीस सुनाई थी आपको, आपने ये क्यों कहा? मैंने हदीस सुनाई है, हदीस के ऊपर आपने बोहतान लगा दिया है। क्यों? मेरी क्या मजाल, मेरी क्या औकात में है हदीस के ऊपर कुछ बात करूं? आपने किया, अभी की है, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग सब चल रही है जनाब। अच्छा, ये हदीस मैंने क्यों सुनाई थी कि जब आपने ये वाली हदीस 631 पेश की थी और आपने कहा था ये रफ़ा दैन के मुतल्लक है, तो मैंने कहा ये रफ़ा दैन के मुतल्लक तो नहीं है।
आपने अपना लुकमा हदीस के मुंह के अंदर क्यों डाला? उसके बाद मैंने ये वाली मुस्लिम शरीफ की हदीस पेश की। जी भाईजान, मैंने तो आपने अब जनाब मेरे ऊपर कह दिया कि तुम्हारे पास कौन सा सर्टिफिकेट है कि तुम लोगों को जहन्नम रसीद करो। मुबशिर भाई मेरी तो बात सुन लें। नहीं मतलब ये कि मुबशर भाई कोई अहमियत नहीं रखते, मेरे सामने हजूर अलैहिस्सलाम सब कुछ है। आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये कैसा एक जुल्म किया है, सितम किया है, और हजूर की बात को, हजूर की हदीस को क्यों चैलेंज किया है? इतना बड़ा चैलेंज क्यों किया हदीस को? खुदारा आप क्यों किया है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर क्यों आपने इतराज क्यों कायम किया? बताएं जरा। भाई मेरी क्या औकात, मैं आपसे सलाम के आपने कहा है, अभी कहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। ना बोलें यार, मेरी बात आपने सुनो। रिकॉर्डिंग हो रही है, झूठ वो सारी दुनिया सुन लेगी, सबके सामने आ जाएगा। मैंने ये दिखानी थी ना आपको, मैंने ये आपको दिखाना था ना। अच्छा कि चले, आपने मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये ब्रांड के अंदर बैठे हैं, हम गवाहियां ले लेते हैं, 2-3 गवाहियां। कासिम भाई, कासिम रिजवी साहब बैठे हैं। कासिम रिजवी साहब बताइए, इन्होंने किसको कहा था और किस बात पे कहा था कि भाई तुम जहन्नम का सर्टिफिकेट बांट रहे हो? बताइएगा जी। जब जो है आपने इनसे हवाला पूछा था रफ़ाउल का, तो इन्होंने बोला जी ये हवाला है, तो उसमें कुछ है ही नहीं था। हैं जी? मैंने वो तो मियाँ साहब अभी एक मिनट, आप कह रहे हैं ना झूठ बोल रहे हो तुम, ठीक है, एक मिनट रुक जाएं, तो आप गवाहियां ले लेते हैं। आप अपनी बात कंप्लीट भाई गवाहियां ले लेते हैं, या आपकी हमायत के अंदर बात कर रहे हैं? मियाँ साहब आपकी हमायत में बात कर रहे हैं, सुन तो लें। आप अपनी बात कंप्लीट कर गवाहियां ले लेते हैं, गवाहियां ले लेते हैं। आपने तो सब कुछ झूठा कर दिया ना, हालांकि रिकॉर्डिंग हो रही है, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो कोई मसला नहीं, रिकॉर्डिंग करे ना। तो ये देखिए, मैंने ये हदीस पेश की थी कि मन काज़ा अलैया मुताम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। तो आपने कहा था कि तुम्हारे पास क्या डिग्री है कि तुम लोगों को जहन्नम की डिग्रियां बांट रहे हो? आपने कहा था कि इंजीनियर भी जहन्नमी है और उसके स्टूडेंट्स भी जहन्नमी है। मैंने नहीं, ये बात नहीं, ये बात नहीं, ये बात नहीं, ये हदीस पेश की थी ना जब, ये वाली गलत बात कर रहे हैं। 631 बुखारी की 631, ये इसमें रफ़ाइदैन का कोई जिक्र नहीं है। कोई जिक्र नहीं है। मेरी जनाब मेरी बात तो सुनेंगे ना। इसमें कोई जिक्र नहीं। आपने ये झूठ क्यों बोला? ये क्यों झूठ बोला कि 631 नंबर बुखारी की 631 के अंदर रफ़ाइदैन का जिक्र है? उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखो। अब नमाज किस तरह पढ़ी है सल्लम ने, उसको 735 बुखारी में 735 में लिखा होगा उसको भी। अच्छा जी, चले कौन सी हदीस निकाल लूं? एक मिनट, कोई समझ के। जी 735 बुखारी की 735, एक मिनट मैं निकाल लूँ जनाब। अब मैं जाहिल हूँ, आपने खुद। एक मिनट रुक जाएं, मुझे निकालने दें। सरकार आप तो रुकते हैं। एक मिनट रुक जाए ना यार, क्या हो गया? हम भागे जा रहे हैं, क्या हो गया? अच्छा चलें, हदीस पढ़ें इसी पे भी आप हदीस पढ़िए। सरकार मैं जाहिल हूँ जनाब, मैं जाहिल हूँ। हदीस तो पढ़िए यार, क्या हो गया? जनाब मैं जाहिल हूँ, आप पढ़ें। जनाब मैं जाहिल हूँ। और नहीं, हमें तो आता ही कुछ नहीं। आपने रफ़ाइदैन आपने सीखा मिर्जा जूनियर से, मैंने तो नहीं सीखा। तो फिर आपने ये नहीं अब कहना है भाई मैंने तो नहीं सीखा मेरे भाई, आपने सिखाना है ना। आपने जो सीखा है आप हमें सिखाएंगे। जी चले पढ़िए हदीस। फिर मैं हदीस का तर्जुमा उसका मफ़हूम इस तरह से बयान कर रहा हूँ। तो पहले भी आपने यही कहना था कि 635 के तर्जुमे और मफहूम के अंदर ये लिखा है, आपने हदीस नहीं कहनी थी। जी हदीस का जो सा तर्जुमा होता है उसको क्या कहते हैं? नहीं, हदीस के तर्जुमे को हदीस नहीं कहते। नहीं, हमने तो किसने कह दिया कि हदीस के तर्जुमे को हदीस कहते हैं? जनाब फिर जाके छठी क्लास से लेके 10वीं क्लास तक सारे तर्जुमे जाके ना, ये मैट्रिक वो तर्जुमा होता है ना, वो नीचे लिखा होता है तर्जुमा। तो भाईजान वो जो तर्जुमा आते हैं ना, वो हू बहू वो कहते हैं कि हमारी जो से टीचर से उन्होंने ओ मियां ये आज तक आपने देखा कि कोई सियासता या हदीसों की किताबें कोई उर्दू के अंदर हों? नहीं, ये तो शुक्र है कि अरबी के अंदर होती है ना। और या ये होता है कि अरबी के साथ उर्दू का या इंग्लिश का तर्जुमा लिखा होता है, ऐसा ही होता है ना? जी बिल्कुल ऐसे। मिर्जा जूनियर जेल में आपका बाबा जो आपने टेबल के सामने रखी होती है किताबें, उसमें भी तो उर्दू तो नहीं ना लिखी होती, उसमें भी ये होता है कि अरबी के साथ उर्दू लिखी होती है, ऐसा ही है ना मुबशिर भाई? ऐसे ही है ना? ये आप मुझे तो ये है कि उर्दू को हदीस नहीं कहते, अरबी को हदीस कहते हैं। असल मतन जो होता है ना वो अरबी का होता है, उर्दू को हदीस ना कहा करें।
तुम वो ये फिर कादियानियों ने और मरजइयों ने मिल के ना हदीस का नक्शा ही बिगाड़ दिया है। आइंदा से आप लोग ये बोला करें इंटरनेशनल बुखारी की हदीस के तर्जुमे में ये लिखा है, जी ठीक है। इंटरनेशनल मुस्लिम अभी की आप हदीस के फलां नंबर में ये लिखा है। तो आपको तर्जुमा साथ बोला करे, तर्जुमे आपको में ये ये लिखा पता है। नहीं है, आपको आप ये ये पता ना नहीं कहा है कि करे किसी के हदीस में बस्तान लिखा में है। झूठ नहीं बांधते। नहीं आप ये ना देखें मेरे भाई, अभी आपको ये आपने पता बोला नहीं है है ना किसी के ऊपर बस्तान में झूठ नहीं 635 बांधते। 635 बोला है ना, 635। तो 735 आपने जब बोला है भाई, हदीस कह रहे हैं कि आप ये हदीस है, तो फिर अरबी पढ़े 735। अरबी क्यों नहीं क्योंकि मुझे पढ़ते? अरबी, क्योंकि मैं जनाब जाहिल हूँ, आप आलिम हैं, आपको हाँ, पता है ना, आप पढ़ लें, नहीं मैं कब आलिम हूँ क्योंकि आप सीखना चाह भाई? रहे हैं। हमारे यहाँ तो डैमेज हैज बीन डन कर दिया ना, हमारी तो दुकानें बंद कर दी, हम तो कुछ भी नहीं, हम तो शय ही कोई नहीं। वो तो आपके बाबू बाबा के जी बारे नहीं में कहते कहते कि हैं। हम तो शय ही कोई नहीं। अच्छा मैं तर्जुमा पढ़ रहा हूँ, भाई हम तो कुछ भी नहीं है आप लोगों के सामने। मैं जनाब कुछ तो भी नहीं हूँ हाँ, आपके चलें जी, सामने। अब हदीस पढ़ने लगे हैं जी जनाब इसका तर्जुमा मिर्जा हदीस जूनियर जेलमी साहब के स्टूडेंट साहब, चलें जी नहीं, पढ़े। मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं जी हूँ जी, फॉलोवर हैं आप? फॉलोवर भी नहीं हूँ अच्छा सरकार, मैं अच्छा, अच्छी बातें ले तो लेता आप हूँ बड़ा कुछ मुकरेंगे, आप देखिए तो सही, आगे आगे देखिए सरकार। होता मैं है जिन क्या। बातों पे अभी तो खड़ा हूँ ना, इब्तिदाई मैं जिन इश्क बातों पे है, खड़ा हूँ, मैं जिन अभी बातों तो पे खड़ा हूँ, इब्तिदाई उस पे कोई इश्क माई का है, लाल नहीं रोता मुझे है उठा क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। मैं अभी ये बड़ी आगे, चीजों का आप इनकार करेंगे, ये आपको देखिए बता रहा आगे हूँ, ये आगे ठीक, आगे आगे देखिए, आगे बहुत कुछ आप तर्जुमा मुकरेंगे, पढ़ रहा हूँ, सब तर्जुमा कुछ पढ़ रहा इनकार हूँ करेंगे। चलें जनाब, मैं हदीस, तर्जुमा पढ़ अब रहा हूँ, हदीस पढ़नी है कि तर्जुमा पढ़ना है? तर्जुमा पढ़ रहा हूँ मैं। चले जी तर्जुमा पढ़े जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करते वक्त अपने दोनों हाथों को मोंडों तक उठाते, इसी तरह जब ये कहाँ से पढ़ रहे हैं, ये कहाँ से पढ़ रहे हैं? ये 735 नंबर, 735 हैं? नंबर, 735 नंबर बुखारी, चलो 735 नंबर। पहले 635 निकलवाई, अब 735 हो गई है। सरकार आप अपने सब कुछ रिकॉर्डिंग हो रही है, सब कुछ आप रिकॉर्डिंग हो रही है। चलें मैं 735 निकाल लेता हूँ, एक आप ना, आप जब रिकॉर्डिंग चलें देखेंगे ना चलें दोबारा, चलें चलें, तो उसको ना 735 देखना निकाल दिया। तो चलें मैंने 735 कहा था या 635 ओ कहा था? चलें भाई चलें, क्या हो गया, चलें पढ़े आप तर्जुमा कहते हैं कि पढ़े, आप ठीक हैं, बाकी सब गलत तर्जुमा है। पढ़िए, पढ़िए तर्जुमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करते वक्त अपने दोनों हाथों को मोंडों तक उठाते, इसी तरह कहाँ कहाँ तक उठाते? मोंडों तक, मोंडों तक मुंडो तक। जी। हेलो जी, ये उर्दू पढ़ रहे हैं कि पंजाबी पढ़ रहे हैं? जनाब उर्दू पढ़ रहा हूँ, तो उर्दू में मुंडा तो केड़ी चीज नु कहंदे ने जी? उधर जो लिखा हुआ है मैंने वही पढ़ना है सरकार। चलो और इसी तरह जब ओ एक ओ भाई ओ एक बोले थे तंद नहीं तानी बिगड़ी है। ओ भाई वो आपका प्लम्बर है, उसको भी ऊपर से भी देखे उर्दू नहीं पढ़नी आती, तो उसके स्टूडेंटों को भी, फॉलोअरों को भी ऊपर से देखो उर्दू तक नहीं पढ़नी आ रही। की वजह से मैं कह रहा हूँ कि मैं हूँ ओ जाहिल, भाई आप पढ़ मोंडे आप पढ़ पंजाबी में कहते हैं, आप पढ़ ओए लें बिल्कुल। कंधे होता है, लफ्ज कंधे होता है अच्छा एक मिनट मैं उर्दू शेयर में, करता कंधे हूँ, कंधे कंधों तक। मैं शेयर आपने करता कंधों को मुंडा बना दिया है, मुंडा। चलो हूँ। ये वीडियो कहाँ से छोटे शेयर- मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े ये मियाँ, देखें, सुभान अल्लाह। ये क्या लिखा हुआ है? हाँ ये बताए मुझे, गूगल हाफिजा उल्लाह से जब मदद तलब करेंगे ना तो फिर ऐसे ही होगा। मदद तो आपने अल्लाह से तलब करनी थी, ये जनाब जब आप यार गूगल मुझसे हाफिजा लड़े उल्लाह ना, से मदद तलब करेंगे मुझसे ऐसे ही लड़े होगा ना, फिर। मुझसे लड़े ना, मुझे ये बात बता देंगे। नहीं मैं कब लड़ रहा हूँ, आप उर्दू का भी नक्शा बिगाड़ दिया। पहले आपको अरबी नहीं पढ़नी आ रही थी, अब आपने सरकार उर्दू आप पढ़नी शुरू की है तो उर्दू भी नहीं पढ़नी आ रही है आपको, बीच में तो आपने पंजाबी मिक्स कर दी है। तो क्या हद कहते हो हैं गई है। इसको? ये क्या, अच्छा मैं आपको देता हूँ, ये क्या लिखा होगा आप नहीं बताएं। ये मुंडे क्या होता है? अपने बताएं ये हाथों क्या को लिखा मुंडों है, तक उठाते थे। बताएं ये क्या लिखा हुआ है, यार कोई आज तक कभी बताएं सुना ये है क्या आपने? लिखा हुआ है, बताएं आप ये क्या कौन लिखा से हुआ है, स्कूल से बताएं ये पढ़े क्या हैं? लिखा हुआ है, कौन से स्कूल बताएं से ये पढ़े क्या हैं? लिखा हुआ है, क्या बताएं ये उर्दू के क्या लिखा अंदर हुआ है कंधों भाई, को ये मुंडा क्या कहते लिखा हुआ हैं? है भाई, हैं? ये क्या लिखा हुआ है मुंडो भाई, ये तक क्या लिखा हुआ है भाई, ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पढ़े, किधर लिखा हुआ है? ये मैंने कंधे लिखा हुआ है, ये देखे, ये इधर देखे। हाँ जी इधर जादू वो जो सर चढ़ के बोले, ये देखे कंधों तक, कंधों तक। मुंडे नहीं होता, कंधों तक होता है, मुंडों तक, जो मुंडों तक। जिस ऐप से मैं पढ़ रहा हूँ वो यहाँ जिस शहर से मैं पढ़ रहा हूँ, वो अब मिर्जा आपने- जूनियर जेलमी के बाबे जुबैर अली जई की वेबसाइट में आपको दिखा रहा हूँ। दनिया निकाले अब। आपको तो लड़ना अरबी आता तो है, अरबी आपको- उर्दू आपको तक नहीं जवाब तुम देना लोगों को नहीं आ पढ़नी आती, रहा। आप मेरी मुंडो बात तक। चले चले मैं आपकी बात मान लेता हूँ, कंधा तक, ठीक है आप ठीक है। मुंडो तक
اب ٹھیک ہے ਬਿਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਤੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ میں کہتا ہوں کندھوں تک اٹھاتے ہیں ਬਿਸਤੀ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਆ ਜੇ ਮਹਿਸੂਸ نہیں کرਨੀ ਤੁਸਾਂ دیکھیں اچھا چلے علم آگے علم اچھا حاصل جی کرنے سے کون سی بستی کندھوں ہے؟ تک اٹھاتے آگے ہاں اسی طرح جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے اور پھر اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو دونوں ہاتھ بھی اٹھاتے اور رکوع سے سر مبارک اٹھاتے ہوئے سمی اللہ لمن حامدہ ربنا ولک الحمد کہتے، سجدہ میں جاتے وقت رفع دین نہیں کرتے تھے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے اب ذرا یہ بتائے کہ یہ اس حدیث کے اندر کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ یہ تو حدیث ہماری دلیل ہے، جی یہ تو مفتی مبشر شاہ کی دلیل ہے یہ حدیث. تو یہ آپ نے کب سے یہ دلیلیں دینی شروع کر دی؟ کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے نا کہ وہ یہ میری دلیل ہے نا، ہماری دلیل ہمارا. اب تک کیسے آپ اپنی بنا سن تو لیں نا یار، اب سن بھی تو لیں، حد ہو گئی ہے. آپ ہماری سنتے ہیں جو ہم آپ کی سنیں. اب آپ ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں، آپ ہمیں سکھا نہیں رہے، آپ ہمارے ساتھ بحث کر رہے ہیں. چپ ہو گئے ہو. میں چاہتا ہوں کہ سیکھنا، ٹھیک ہے نا، آپ مجھ سے لڑنے کے چلو اب تم بول لو جتنا بولنا ہے، پھر بعد میں بولوں گا. چلو نہیں سرکار میری کیا مجال، آپ تو مجدد ہیں سر، آپ بہت بڑے ہیں، میں چھوٹا انسان ہوں، میں نہیں بول سکتا آپ کے سامنے. ہاں بس میں نے بولتی بند ہو گئی. بیان کیا تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہماری ہے، یہ تو ہماری ہے. آپ کا میرا کیا ہوتا ہے؟ دین کیا صرف آپ کا ہے؟ او بھائی ہمیں بھی بولنے کی اجازت دے، بول کے چپ ہو کے تو بتانا کہ بھائی تم بول لو اب، پھر میں بولوں گا. آپ بولیں. چل پھر چپ ہو جا، اب مائک میوٹ کرو، بولیں. مائک میوٹ کر لے، آپ نے بیچ میں بولنا ہے نا. میں نہیں بولتا، آپ بولیں. بول لیں، مائک میوٹ کریں، میں بولتا ہوں. یار آپ بولیں، مائک میوٹ نہیں ہوگا. بھائی آپ نے بولنا ہے نا، آپ عادت سے مجبور ہیں نا بولنا ہے. آپ میں نہیں بولوں گا. آپ کریں جب مائک میوٹ، آپ بولوں گا. چلے مائک میوٹ کریں. آپ بولیں، میں نہیں بولتا. نہیں میں نے اس وقت تک نہیں بولنا جب تک آپ مائک میوٹ نہیں. پھر ٹھیک ہے، پھر میں کر دیتا ہوں، کینسل کر دیتا ہوں، میں پھر چلا جاتا ہوں اگر آپ نے میرے سے لڑنا ہی ہے. اچھا تو یہ ہے کہ ہمارا دعویٰ ہوتا ہے، دعوے کے اوپر دلیل ہوتی ہے نا. تم لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سے نماز فرض ہوئی اس وقت سے لے کے اپنی آخری نماز تک وہ رفع دین کرتے رہے. تو آپ نے دلیل اس کی دینی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی رفع دین کے ساتھ نماز پڑھی. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی کے کچھ عرصہ تک رفع دین کے ساتھ نماز پڑھتے رہے. تو اس کے دلیل کے طور پر، ہمارے دعوے کی دلیل کے طور پر یہ والی حدیث ہے. اس کے اندر کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پوری زندگی رفع دین کے ساتھ ہی نماز پڑھتے رہے. جب سے نماز فرض ہوئی تھی اس وقت سے لے کے اپنی آخری نماز تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع دین کے ساتھ نماز پڑھی ہو. تو دلیل وہ دیجئے گا جو کہ ہماری دلیل نہ ہو، کیونکہ ان چیزوں کو تو ہم مانتے ہیں. یہ تو ہماری دلیل ہے نا، احناف کی یہ دلائل ہیں. یہ ساری حدیثیں جو رفع دین کی آپ پیش کرتے ہیں یہ احناف کے دلائل ہیں. آپ لوگ اپنے دعوے کی دلیل دینی ہے کہ آپ لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی نمازیں پڑھی ہیں رفع دین کے ساتھ. جب سے نماز فرض ہوئی پہلی نماز سے لے کے اپنی آخری نماز تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری نمازیں رفع دین کے ساتھ پڑھی. یہ آپ لوگوں کا دعویٰ ہے. یا آپ کہہ دیں کہ نہیں آپ لوگوں کا یہ دعویٰ نہیں ہے تو ٹھیک ہے. اگر آپ کا دعویٰ ہمارے والا ہے تو پھر تو آپ حنفی ہو گئے نا، پھر آپ غیر مقلد تو نہ ہوئے. تو غیر مقلدوں کا دعویٰ تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی رفع دین کے ساتھ نماز پڑھی ہے. تو میرے بھائی دلیل وہ والی دیجیے گا جو کہ آپ کے دعوے کی صداقت میں ہو، نہ کہ ہمارے دعوے کی صداقت میں. چلیں اب آپ بات کریں. جی میں نے شروع میں آپ سے بولا کہ میں نے کہیں پہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی رفع دین کے ساتھ نماز پڑھی ہے. بتائیں. مائک میوٹ کریں گے پھر میں بتاؤں گا، ایسے نہیں. میں نے پہلے مائک میوٹ کیے بغیر میں نے کچھ بولا ہے؟ چلیں میں اب بولنے لگا ہوں، پھر بیچ میں نہ بولیے گا. دیکھیں
इसका मतलब ये है कि आप लोगों का दावा तो फिर हमारे वाला है, अहनाफ वाला हुआ ना आपका दावा। भाई यकीनी सी बात है, अगर आपका ये दावा नहीं है कि हजूर ने पूरी जिंदगी रफ़ाई दैन के साथ नमाज पढ़ी है, तो फिर तो आपका दावा तो हमारे वाला हुआ, तो फिर तो झगड़े ही खत्म हो गए ना सारे, फिर तो सारे झगड़े खत्म हो गए। तो मतलब आप हजूर अलैहिस्सलाम ने जुज़वी तौर पे रफ़ाई दैन किया, कुल्ली तौर पे नहीं किया। अब मैं अब ये कहना भाई क्यों बोले ये इसी वजह से तो कहता हूँ मैं माइक म्यूट करें कि आपको तकलीफ है, आपने बीच में बोलना है। यार आपने भी बात ये देखा, ये फिर बोल पड़े हैं। अच्छा जब आप ये मुझे पता है ना आपको तकलीफ है, मुझे पता है ना, मैं आपका माइक इसी वजह से म्यूट करवा रहा था, ये वजह है असल में। जब आप बात मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई, देखे बोल रहे हैं, बीच में बोल रहे हैं, देख रहे हैं। मैं आपकी बात में बोलता हूँ, मैं चुप करके सुनता नहीं हूं आपकी बात। मतलब बदमाशियां भी करती हैं आप लोग, एक तो जाहिल और ऊपर से बदमाश है और ऊपर से बदतमीज है। मतलब गुंडे हो आप लोग, गुंडे हो, क्या हो तुम लोग? क्या अपनी मन मानी करनी है हर जगह जाके? कादियानी भी ऐसे ही है, मरज़ई भी ऐसे ही है, दोनों। तो बात ये मैं कर रहा था, या तो आप कह दें कि भाई हमारा दावा जो है ना वो अहनाफ वाला ही है, तो ठीक है, बात खत्म हो जाती है। अभी आपकी गुफ्तगू से तो यही अंदाजा हुआ है कि आपका दावा अहनाफ वाला है, गैर मुकल्दों वाला नहीं है। क्योंकि आपने कहा है ना कि मैंने कब कहा है कि हजूर अलैहिस्सलाम अपनी पहली नमाज से लेके आखिरी नमाज तक रफ़ाई दैन करते रहे, तो इसका मतलब यही हुआ कि आपका दावा हमारे वाला है, तो फिर तो झगड़े ही खत्म हो गए। तो अगर तो दावा है हमारे वाला, तो फिर तो आपको रफ़ाई दैन नहीं करना चाहिए, फिर क्यों करते हैं? क्योंकि जुज़वी तौर पे तो बड़े अमल हजूर अलैहिस्सलाम ने किए हैं, जैसे मुता भी किया है, मुते वाली हदीसें भी मिलती हैं। नबी करीम का अमल नहीं, माजरत, इसको नबी करीम का अमल ना कहिएगा, इसको हदीस में कह रहा हूं, हदीसों के अंदर मुते का भी जिक्र मिलता है। तो क्या अब वो हदीस अगर मिल जाए जो जुज़वी तौर पे हुई है, तो क्या उसको पूरी जिंदगी का आप अमल बना देंगे? जैसे राफ़िज़ियों का अकीदा है। अच्छा, एक और जुज़वी तौर पे अमल मैं आपको दिखाता हूँ, खड़े होके पेशाब करने का अमल जुज़वी तौर पे वो मिलता है। तो क्या आप जब जब पेशाब करेंगे खड़े होके करेंगे पेशाब? अच्छा, एक और जुज़वी मैं आपको बताता हूँ, मस्जिद के अंदर थूकने की भी हदीस मिलती है। तो क्या ये आप अपनी जिंदगी का अमल बना लेंगे कि भाई जब जब मस्जिद में जाएंगे उधर थूकेंगे? है मतलब ये कि जुज़वी तौर पे अगर कोई हदीसें मिलती हैं, जुज़वी अमल कोई हुए हैं, तो उसको क्या आप अपनी जिंदगी का अमल बना लेंगे? ये है, ये कायदा कुली है। तो जाइए जरा, अगर कायदा कुली है तो मस्जिदों में जाके जरा थूकीजिए, तो लोग आपको उधर लम्बे पा के ना लितर ना लगाए तो मुझे नीवे था बिठा लेना है। लोगों के सामने खड़े होके करिए जरा पेशाब, है तो लोग आपको मुंह के ऊपर ना मूतरे तो मुझे नीवे था बिठा लेना, और फिर ऊपर से ये कहना कि एकेडमी के अंदर से हमने ये सीखा है, मिर्जा जूनियर जेलमी से ये अच्छी बात हमने सीखी है। चले अब आप बात कर लें, करें बात। जी बहुत शुक्रिया जनाब। ये जो आपने कहा है कि जुज़वी तौर पर हमें ये मिलता है, ये जो सा थूक वाला है, जो सी हदीस, ये काइंडली मुझे नंबर बता दें, मैं देख लूँ। बात कर ली है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि जो आपने जो अभी बात की मुता की, तो जो आपने कहा कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है, नौज़ बिल्ला, जो आपने अपने उसी टाइम जो आपने बोला भी कि ये हदीस में ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये नहीं, तो काइंडली आप भी देख लिया करें कि बहसीयत इंसान हर एक से गलती हो जाती है, ठीक है। और आपने जैसे पहले बहुत ज़्यादा आप एग्रेसिव हो के जैसे मुझे कह रहे थे कि तुमने नौज़ बिल्ला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर ऐसे बात की, तो जनाब हर एक से गलती हो जाती है। जो अलबत्ता मैंने कोई गलती की नहीं थी, मैंने वो हदीस जो सी पहली 611 नंबर बताई थी, उसमें मैंने कहा था कि नमाज ऐसे पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखो, और आगे तरीका भी वो आगे उस हदीस को कॉन्टेक्स्ट लिया था 635 का और 735 का, और इस हिसाब से मैंने बताई थी। और आप
धक्के से अग्रेसिव होकर मुझसे बात कर रहे थे। और जो रही बात आपकी जो सी आपने कहा है कि खड़े होकर जुज़वी तौर पर खड़े होकर पेशाब करने का भी वो मिलती है हदीस, तो जनाब वाला साहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पेशाब के कतरों बचने की तलकीन की हुई है। ठीक है, अगर कोई ऐसी जगह जहाँ पे हम बैठ के करते हैं और नीचे पथरीली ज़मीन है और उस वहाँ पे भी बैठ के अगर छींटे हम पे पड़ रहे हैं तो फिर क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं नीचे बैठने का भी। और एक ऐसी जगह जहाँ पे हम खड़े होकर भी कर रहे हैं और वहाँ पे हम तक छींटे नहीं पा रहे। असल मकसद तो पेशाब के छींटों से बचना है ना, तो चाहे बैठ के करें चाहे खड़े होकर करें। जी मैंने बात कर ली। अच्छा, आपने मुझसे थूकने वाली हदीस मांगी। जिस दिन आप वो हदीस ले आएंगे ना, पूरी जिंदगी हजूर अलैहिस्सलाम रफ़ा दैन के साथ नमाज पढ़ते रहे, ठीक है, तो उस दिन मैं आपको वो थूकने वाली हदीस भी दे दूंगा। ठीक है, ये तो आपकी पहली बात का। बीच में क्यों बोल रहे हो? बीच में क्यों बोल रहे हो? क्यों बोल रहे हो? बीच में क्यों बोल रहे हो? इतने बदतमीज होती है। फिर मैं तुम लोगों की तस्लील ना करूं तो क्या करूं? बेइज्जती ना करूं तो क्या करूं? हैं, मुझे मजबूर करते हो तुम लोग कि मैं इन कादियानियों और मज़हियों की जिल्लत करूं, इनको लित्तर लगाऊं। हैं, आप धूप में पकोड़े तल रहे हैं, आप मुझे बदतमीज इंसान। बीच में क्यों बोल रहे हो? बात तो करने दो। आप थूक में तुम्हारी बात के अंदर मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारी बात के अंदर मैं बोल रहा हूँ। चल रहे हैं सरकार, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अब मैंने जाना है। नहीं है बदतमीज है यार। मैं तो समझा था कि वो प्लम्बर ही बदतमीज है, उसके छोकरे भी सारे बदतमीज हैं। नहीं, मैं इसका कोई छोकरा नंबर के तुम बदतमीज लोग हो। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बदतमीज इंसान। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे बदतमीज हो तुम लोग जनाब, आप बहुत अच्छे हैं। अल्लाह ताला आपको अच्छे हैं, हिदायत दे, हमें भी हिदायत दे। जब आप मुझे वो आप जाते जाते एक बात मेरी नोट कर लो। अभी जाके ना अम्मी को पूछना, जन्नत के अंदर कहना प्लम्बर ने मुझे एक अच्छी बात बताई है कि जन्नत के अंदर तुम्हें 4 शौहर मिलेंगे। तो अम्मी से जाके पूछना कि अम्मी जी तुम्हें भी मिलने हैं कि नहीं 4 शौहर। ये जाके पूछना। ये अच्छी बात उसको कहना कि मैंने प्लम्बर से सीखी है। प्लम्बर ने मुझे बताया था कि 60 साल की अगर इबादत कर ले तो जन्नत के अंदर जाके बंदा जो है ना मिनी खुदा बन जाता है, मिनी गॉड बन जाता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तुम लोगों को मुशरक बना गया है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ तुम लोग जो है ना वो आप आगे से ऐसे बस तल रहे हैं। मुझे जी करते हो। मैं उस दिन आपको हदीस का नंबर दूंगा जिस दिन आप मुझे बयान की मुझे हदीस ला के देंगे, वो हदीस का मैं आपसे नंबर पूछ रहा हूँ। मैं तो जाहिल हूँ, मैं तो स्टूडेंट हूँ, आप मुझे दें। मैं तो जाहिल हूँ, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं तो जाहिल हूँ, मैं बदतमीज हूँ। मैं तो बदतमीज हूँ, साथ ये भी कहा करे मैं बदतमीज हूँ। और के साथ और गुफ्तगू का अंदाज तुम लोगों को है को नहीं, जबड़ियां मारनी शुरू कर देते हो। जमील अमान, जमील साहब लगता सो गए ने। मैं असल च जमील वास्ते आया था जे, क्या क्लास च नहीं आंदा पे? मैनू पूछना सी सिर्फ कि तू क्लास क्यों नहीं आंदा पे, तो गल कोई और शुरू हो गई। जमील, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्ताद जी नाम चेंज कर दिए। जी बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। यही बात यार, ये जमील अमान जब आए ना तो इसको उम्र पूछना ही लाजमी पूछने कि तू क्लास में क्यों नहीं आ रहा। जी उस्ताद, इसकी अभी तक एक हाजिरी भी नहीं लगी, एक हाजिरी भी इसकी नहीं लगी। और ये इधर टिकटॉक के ऊपर बैठा होता है, जितनी देर ये टिकटॉक पे बैठता है उतनी देर ये सबक सुन ले और हाजिरी लगा ले। इसे लाजमी पूछना ही जब आएगा। तो मैं भी अभी चलता हूँ। जी उस्ताद मोहतरम, अगर उस टाइम मैं मौजूद हुआ तो इंशाल्लाह लाजमी पूछ लूंगा। चलो ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार
नहीं।